Hello students, this is first topic of fluid mechanics, right? And fluid mechanics comes under soil and water conservation engineering. So we start fluid mechanics with properties of fluid. Definition of fluid: a substance in liquid or gaseous phase is referred to as fluid. It is capable of deforming continuously under the action of shear stress, however small the shear stress may be. This is important line. So to understand definition of fluid, which may be liquid or gas, we compare its deformation from the deformation of solid under the action of shear force, right? This is solid deformable body, and we are deforming this solid body under elastic limit. We are not inducing any kind of permanent deformation under the action of shear force. This shear force acts parallel to this area, and this is A, right? So we are deforming this solid body with the help of this shear force F within elastic limit, right? So this point comes to this point and this here. So this is shape of body after deformation. This is deformation angle. This is also called shear strain, right? So after certain amount of deformation or shear strain gamma, this solid body will develop internal resisting force and further deformation stops, right? So shear stress here F upon area on which this shear force is acting, and this is proportional to shear strain or deformation angle, and proportionality constant is modulus of rigidity. So this is behavior of deformable body under elastic limit upon the action of shear force F. So this is deformable solid body. Now we take fluid kept on this horizontal surface, or we are considering fluid body in a pond. Fluid is not moving, it is stationary, or fluid kept in large bucket. Now we place a plate, right? The fluid layer which is in contact with plate is fixed with this plate, right? Layers will stick to this plate due to property called no slip condition, right? Now we apply shear force if area of this plate is A, right?
the layer adjacent to layer attached with this plate. This is layer adjacent to attached layer. So this is dragged by upper layer. So this will also resist upper layer, right? By the property of viscosity. So here we will see due to this, if motion in plate starts and after some time this point of fluid layer which is in contact with this plate comes here. This point will reach to this point because subsequent lower layers are moving with relatively low speed. This comes here, this comes here, this will reach to this point. Again, due to no slip condition, layer which is in contact with this fixed horizontal surface is not moving at all. So this is deformation after some time. But fluid body is not developing internal resisting force in order to cancel the effect of this shear force F. This will further deform. Here deformation is not stopping. Fluid body will deform continuously until the action of this force. ये हमेशा डिफॉर्म होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं था. यहाँ डिफॉर्मेशन रुक गई थी आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेन. लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने देखा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ गया था, ये वाला पॉइंट फ्लूइड पॉइंट यहाँ आ गया, फ्लूइड पार्टिकल यहाँ आ गया, ऐसे. लेकिन और वेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट और इधर चला जाएगा और चला जाएगा और चला जाएगा, कभी नहीं रुकता है. यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो विद इन इलास्टिक लिमिट थोड़ा सा और शियर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन थोड़ा और बढ़ जाएगी, और फिर जो है ना डिफॉर्मेशन फर्दर स्टॉप हो जाएगी. यहाँ पर फोर्स लगाएंगे और तो इवन स्मॉल फोर्स पर ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, कहीं रुक तो नहीं रहा है. तो ज़्यादा फोर्स कर देंगे तो डिफॉर्मेशन का रेट बढ़ जाएगा, राइट. तो ये दिस इज deformation in dt time. So here deformation rate is d theta upon dt, right. फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो और तेजी में डिफॉर्म होगा, ये पॉइंट और जल्दी यहां पर पहुंच जाएगा, d थीटा बाई dt इंक्रीज हो जाएगी, राइट. तो हियर F upon A shear stress is proportional to d theta by dt. हम shear stress proportional to d theta और थीटा नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि बड़ा फोर्स लगाऊं तो भी जो है ना कंटिन्यूअसली फ्लूइड बॉडी डिफॉर्म हो रहा है, छोटा भी लगाऊं तो भी डिफॉर्म हो ही रहा है कंटिन्यूअसली, कभी रुकेगा नहीं. तो कैसे हम कह सकते हैं कि shear स्ट्रेस ये डिफॉर्मेशन एंगल के प्रोपोर्शनल है. छोटा से भी कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट है, डिफॉर्म होता चला जाएगा, और बड़ा से भी होता चला जाएगा. तो हम ये रिलेशन इसके जैसा नहीं लिख सकते. तो फिर जो है ना छोटे बड़े फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन का रेट जो है ना लो और हाई हो रहा है. छोटे पर छोटा शियर फोर्स, छोटा शियर स्ट्रेस, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन छोटा, बड़ा शियर फोर्स, बड़ा शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा. क्या ही डिफरेंस था, बिग. दिस इज बिगेस्ट डिफरेंस इन केस ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी एंड फ्लूइड. However small the shear stress may be, it is capable of deforming continuously under the action of shear stress. Continuously रुकेगा नहीं.
राइट। वही यहां पर लिखा गया, इन सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इन फ्लूइड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, डिफॉर्मेशन रेट और shear strain rate. When a constant shear stress is applied, a solid eventually stop deforming at some fixed strain angle. After deformation of gamma, deformation stops. In case of solid body, whereas fluid never stops and approaches a constant rate of strain. यानी इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन रेट क्या है वो अचीव करने के बाद उसी रेट से डिफॉर्म होता चला जाएगा। फिर हम जो है ना शियर फोर्स बढ़ा देंगे, शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन रेट है, डिफॉर्मेशन रेट है, वो अचीव करने के बाद उसी स्ट्रेन रेट और डिफॉर्मेशन रेट से कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक टाइम तक डिफॉर्म होता चला जाएगा, जब तक कि वो शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस इसमें लग रहा है। राइट। तो ये डेफिनेशन था आपका फ्लूइड का। फ्लूइड जो है ना लिक्विड है भी है और गैस भी है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड डज नॉट हैव सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड इज इनकम्प्रेसिबल। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, राइट, एंड कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। तो बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। नो सच फ्लूइड एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली। हाउएवर फ्लूइड्स लाइक एयर एंड वाटर हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एंड कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल फ्लूइड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो वाटर एंड एयर को हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आइडियल फ्लूइड ट्रीट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट आइडियल फ्लूइड वो नहीं है। थोड़ी सी विस्कोसिटी है, थोड़ी सी सरफेस टेंशन है और 100% इनकम्प्रेसिबल नहीं है। रियल फ्लूइड्स, फ्लूइड्स विच आर नॉट आइडियल आर कॉल्ड रियल फ्लूइड्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यानी जिसके पास सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, जो कंप्रेसिबल है सिग्निफिकेंटली, राइट, सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये प्रॉपर्टीज है, तो वो हमारा रियल फ्लूइड है। तो जितने फ्लूइड होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो सब हमारा रियल फ्लूइड ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, density, mass upon volume, its unit kg per meter cube. Density of liquid is generally assumed to be constant. Density of gas is proportional to pressure and inversely proportional to temperature. If we take example of ideal gas, so ideal gas always, ideal gas equation PV is equal to mRT, right? Mass of the gas, characteristic gas constant, and temperature, pressure and volume. So P is equal to m upon v RT, m upon v density of ideal gas, P is equal to rho RT, right? At constant temperature, if we increase pressure, density increases. At constant temperature, at constant pressure, if T increases, density decreases. लिक्विड एंड गैस ये फ्लूइड है, राइट। लिक्विड ऑलमोस्ट जो है ना प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है, प्रेशर के साथ उसकी वेरिएशन बहुत कम है। लेकिन गैस में जो है ना प्रेशर के साथ डेंसिटी में वेरिएशन अप्रेसिबल अमाउंट की होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड upon density of some standard fluid at a specific temperature. For liquid, a standard fluid is water at 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 4 डिग्री सेल्सियस की वाटर को इस डिनोमिनेटर में उसकी डेंसिटी हम रख देंगे, तो किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ जाएगी, राइट। तो खुद वाटर की जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, राइट, Sg, वाटर की डेंसिटी ऑफ द वाटर अपॉन डेंसिटी, वाटर इज अ लिक्विड, so for liquid we use a standard substance is water, so density of water upon
density of a standard substance for liquid, we use density of water as a standard, so it is 1. A specific gravity of mercury, density of mercury upon density of water, right? Density of mercury 13.6 times density of water upon density of water, 13 point, right? So a specific gravity of mercury 13.6. If a specific gravity is given, then we can easily find density of substance. Suppose a specific gravity of mercury is given and it is 13.6, a specific gravity. So density of mercury becomes 13.6. A specific gravity is given. So density of mercury 13.6 into density of water. So density of mercury 13.6 times density of water. A specific weight density or unit weight, gamma, weight of substance upon volume of substance. Weight density, mass upon volume, mass of substance upon volume of substance. Weight density, a specific weight or unit weight, weight of substance upon volume of substance, mass into g, weight on volume, m upon v, density into rho g, right? So unit weight or weight density or a specific weight of water, density of water into g, right? Unit Newton upon meter cube. Unit weight of mercury, density of mercury into g, right? 13.6 into 1000. This is the density of mercury into 9.8. So 13.6, and this is unit weight of water. Bulk, modulus of elasticity and compressibility, right? This is the state of stress of point inside liquid body, right? Suppose water is kept in this container. This is free surface of water body. Here pressure is atmospheric. From hydrostatic law, if we go below, the free surface pressure increases. So suppose this is point at h depth below free surface. So here pressure from all directions will be this plus rho gh. Pressure at point A, atmospheric pressure above free surface एंड एच डेप्थ आप जो है फ्री सरफेस के नीचे आए हो तो इतना प्रेशर इंक्रीज करेगा. ये वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर जी. तो प्रेशर एट दिस पॉइंट is acting from all directions of this magnitude, right? Bring this point here, draw three mutually perpendicular planes. So this is a state of stress at point A, which is at h depth below free surface, right? So three mutually perpendicular planes passing through this point A. So on this plane, pressure is P, which is equal to P ATM plus rho water GH. From this direction on this plane, same pressure, right? Now friends, we increase pressure from P to P plus dP. We are considering in general, this is compressible, right? So its volume
decreases from V to V minus dV. A small change in pressure causes dV amount of decrement in the volume of this element, fluid element. Right. So volumetric strain, change in volume. Here volume is decreasing, so final volume is less than initial volume. This is final volume, this is initial volume. So check the difference, minus dV upon V. This is volumetric strain. So here volumetric strain of this value is proportional to dP. If we increase value of dP, we will see increment in volumetric strain. Right. Proportionality constant is called bulk modulus of elasticity. Bulk modulus of elasticity of fluid dP upon volumetric. राइट तो यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है. यूनिट ऑफ के इस ये दिस इज यूनिटलेस और ये प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या होती, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट डियर फ्रेंड्स, इस एलिमेंट का जो है ना मास चेंज नहीं हो रहा है प्रेशर को चेंज करने से. प्रेशर पी से पी प्लस डी पी हो गया, लेकिन और वॉल्यूम वी से वी माइनस डी पी हो गया, तो मास वही है, अब लेस वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो गया. मास कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, जो प्रेशर इंक्रीज कराया, मास डेंसिटी इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, उससे निकाल लेते हैं कांस्टेंट. डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, डेंसिटी को कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस रिवर्स करो ऑर्डर डिफरेंशिएशन का. वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, डेंसिटी को डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. राइट यहां से क्या हो जाएगा आपको, रो डी वी इजकल टू माइनस वी 0. राइट डी वी अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू 0 अपॉन रो. तो अनदर डेफिनेशन जो है ना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो गया, dp अपॉन 0 अपॉन रो, रो dp अपॉन 0. compressibility beta, it is inverse of bulk modulus of elasticity. So 1 upon rho 0 upon dp. राइट प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी में चेंज हो रहा है तो बीटा की वैल्यू मिलेगी. प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये 0 हो जा रही है, तो बीटा की वैल्यू 0 होगी. राइट तो इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर चेंज होने से डेंसिटी में चेंज नहीं होती है, तो उसके लिए बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 0 होगी. एंड 1 अपॉन के यानी 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगी. इसकी वैल्यू bulk modulus of elasticity. So for incompressible fluid, bulk modulus of elasticity is infinity and compressibility is 0. Right? Done. Viscosity. It is measure of resistance of fluid to deformation. It is due to internal frictional forces that develop between different layers of fluid when they are forced to move relative to each other. Right? When two fluid layers are forced to move relative to each other, then due to viscosity, one layer tries to retard the movement of adjacent layer. Right? Or we can see here with the same example, this is a stationary solid surface. Here we have fluid at rest. This is plate and this plate is moving with velocity v. Right?
So this is velocity profile in the fluid. The layer which is in contact with this plate is moving with velocity v. Adjacent layer is moving with low speed. Speed decreases further, and fluid layers which is in contact with this stationary bottom surface is not moving at all. So this is velocity profile, right? तो इनिशियली जो है ना ये फ्लूइड मास रेस्ट में था, लेकिन हम इस प्लेट को रख के इसको वी वेलोसिटी से मूव किए, तो ड्यू टू विस्कोसिटी एडजेसेंट लेयर पर इसके द्वारा विस्कस फोर्स लगा और इसमें भी मोशन आई, लेकिन इसकी वेलोसिटी इससे कम है, राइट? तो दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, राइट? तो यहीं पर हम जो है ना क्या करते हैं, वाई डिस्टेंस पर एक फ्लूइड लेयर कंसीडर किया जिसमें फ्लूइड पार्टिकल यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड एक और लेयर कंसीडर किया फर्दर डिवाइड डिस्टेंस एबव, तो इसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू होगी, राइट? वेलोसिटी जो है ना ऐसे डिक्रीज कर रहा है, ये प्लेट की हेल्प से मूव कर रही थी और यहाँ पर जो है ना स्टेशनरी है, तो ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन जो लेयर इसके कांटेक्ट में है वो इसी वेलोसिटी से मूव करेगा, उस चिपके हुए लेयर के बगल का जो लेयर है उससे कम वेलोसिटी में मूव करेगी। और ये मूवमेंट इसमें कैसे आया, प्लेट तो इससे कांटेक्ट में नहीं थी इस वाले लेयर के फ्लूइड के, लेकिन विस्कोसिटी के कारण इसमें जो है ना विस्कस फोर्स लगा है और ये मूवमेंट आई है, राइट? और अगेन यहाँ देखेंगे ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन ये स्टेशनरी है, तो इसके साथ जो चिपके हुए फ्लूइड है वो मूव नहीं कर रहा है। तो यही जो है ना ये दिखाया गया है, यू वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल की जो वाई हाइट पे है, और फर्दर डी वाई डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी यू प्लस डी यू हो गया। वेलोसिटी जो है ना हाइट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो यू इज द फंक्शन ऑफ वाई, वाई इज मेजर्ड फ्रॉम this in this direction. Clear? Upper layer which is moving faster tries to draw the lower slowing moving layer along with it. Similarly, as a reaction to this, lower layer tries to retard the upper one. Thus, there exists a shear force between the two layers. आप दोनों लेयर के बीच में shear force डेवलप हो जाएगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ये विस्कोसिटी की वजह से आ रही है, राइट? Now we define shear strain rate, then Newton's law of viscosity, right? So initially when fluid is at rest, this plate is not moving, तो ये सारे जो है ना सभी लेयर के फ्लूइड पार्टिकल्स करस्पॉन्डिंग फ्लूइड पार्टिकल ऐसे थे, लेकिन हम dt टाइम के बाद देखें जब इस प्लेट में मूवमेंट आ गई, तो ये पार्टिकल, ये वाला जो पार्टिकल था, सपोज कीजिए यहाँ आ गया, वही दिसो किया ये यहाँ आ गया, ये वाले पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, एंड ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया। तो यू डी टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल एट हाइट वाई, ये यू डी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये यू प्लस डी यू डी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, ये फ्लूइड पार्टिकल dt टाइम में, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो डिफॉर्म हो गया कि नहीं, पहले सामने सामने था ये फ्लूइड पार्टिकल और ये आमने सामने था, लेकिन dt टाइम बाद ये यही रह गया और ये यहाँ पहुँच गया। तो ये जो लाइन जो था इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स को मिलाने वाला, अब क्या बन गया, ये बन गया, राइट? तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यू डी टी, और ये डी यू डी टी एडिशनल ये इतना ट्रेवल किया, तो यही तो डिफॉर्मेशन दिख गया ना, ये डिफॉर्मेशन है ये d theta, right? Now we calculate this deformation angle. So tan d theta is equal to perpendicular upon base in this right angle triangle du dt upon dy, because d theta is very small, so tan d theta
and d theta. They are approximately equal. So d theta is equal to du dt upon dy. D theta upon dt is equal to du upon d theta upon dt is shear strain rate, and du upon dy change in velocity in dy distance, right? So this is called velocity gradient. Velocity gradient, right? And this is shear strain rate. Now we define Newton's law of viscosity. As per Newton's law of viscosity, shear stress is proportional to shear strain rate. Shear stress is equal to proportionality constant mu. This is viscosity. D theta upon dt mu d theta upon dt is du, right? तो ये जो है ना आपको याद रखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. If flow is taking place between two parallel plates, right, and the gap between the plates is very narrow, गैप बहुत नैरो है, y distance, this is very small. इसको हम कांस्टेंट इसको जो ना फिक्स कर दे रहे हैं, और ये जो ना v वेलोसिटी से, ये जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो ये जो कर्व है नैरो गैप में, ये कर्व स्ट्रेट हम ले सकते हैं कि नहीं, राइट? नैरो गैप में ये कर्व स्ट्रेट हम ट्रीट कर सकते हैं, राइट? सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, इस लेयर में फ्लूइड की वेलोसिटी v और इस लेयर में फ्लूइड की वेलोसिटी ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन 0, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस 0, और कितने गैप में, y गैप में, म्यू v अपॉन. तो हम ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप ले सकते हैं जब गैप बहुत स्मॉल हो तो, राइट? Shear stress opposing the movement of the fluid units Newton per meter square और Pascal. Mu absolute viscosity और coefficient of viscosity और dynamic viscosity. डायनेमिक विस्कोसिटी क्यों कहते हैं, पहले यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, देन हम इसकी चर्चा करेंगे. यूनिट ऑफ म्यू, शियर स्ट्रेस म्यू ड्यू अपॉन dy. This is Newton's law of viscosity. The fluid which obeys this law is called Newtonian fluid. Newton's law of viscosity के जो फ्लूइड ये फॉलो करेगा वो फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा. This is Newton पर मीटर स्क्वायर, मीटर और इसका सेकेंड, मीटर सेकेंड. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन. दिस इज पास्कल. फर्दर इसको एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करोगे, न्यूटन मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड, राइट? तो केजी पर मीटर पर सेकेंड. This is MKS unit for absolute viscosity, actual viscosity, absolute viscosity and dynamic viscosity. डायनामिक इसलिए कि डायनामिक एनालिसिस में फोर्स, आप मोशन को दो तरीके से स्टडी करते हैं, डायनामिक एंड काइनेमेटिक्स. इन डायनामिक्स वी कंसीडर कॉजेज ऑफ मोशन. मोशन का कॉज क्या हो सकता है, फोर्स, मोमेंट. फोर्स में मास का यूनिट आएगा कि नहीं, राइट? मोमेंटम में भी मास की यूनिट आएंगे. तो जब मोशन की डायनामिक एनालिसिस होती है तो वी ब्रिंग कॉज ऑफ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशंस आर, कॉजेज ऑफ मोशन आर फोर्स, मोमेंटम, दे हैव यूनिट ऑफ मास. इसलिए इसे डायनामिक विस्कोसिटी कहा गया है. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं. काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, म्यू अपॉन रो. डेंसिटी से जब हम डिवाइड कर देंगे
म्यू को केजी पर मीटर पर सेकेंड को डेंसिटी केजी पर मीटर दिया है, इसमें से मास गायब हो गया, मास का यूनिट नहीं है। तो दिस इज also viscosity, but it is called kinematic viscosity, right? MK's unit of dynamic viscosity kg per meter per second. Convert this in CGS unit. 1 kg 1000 gram, 1 meter 100 centimeter. So it is coming 10 gram per centimeter per second. This is called poise. So 1 Pascal second or 1 kg per meter per second is equal to 10 poise, right? So 1 poise is equal to 1 upon 10 Pascal second or kg per meter, right? 1 centipoise, 1 centi is equal to 10 to the power minus 2, and poise is 1 upon 10 kg per meter per. So in this way, guys, we can convert centipoise into MKS unit in calculation. MKS में calculation easy होता है, right? Meter square per second is the MKS unit of kinematic viscosity. इसको भी CGS में ले जाते हैं, तो ये 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज कॉल्ड स्टोक, राइट? तो इस तरह से जो है ना CGS से MKS में और MKS से CGS में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा प्रॉब्लम में रहेगा सॉल्व करने के लिए MKS में हम इजीली कन्वर्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, राइट? डायमेंशन देखेंगे तो केजी इसके लिए m, ये लेंथ हो गया, लेंथ रेस्ट टू -1, और जो है ना ये t का जो है ना दिस इज द डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, एंड न्यू के लिए जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो जाएगा? m 0 है, पावर इसका है ही नहीं, L स्क्वायर t -1, L स्क्वायर t माइनस, याद रहेगा ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, लिक्विड फ्लूइड, गैसियस फ्लूइड। दोनों का जो है ना बिहेवियर टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ अलग है। इन केस ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल्स कॉजेज विस्कोसिटी इन केस ऑफ फ्लूइड। टेम्परेचर बढ़ने से जो है ना कोहेसिव फोर्स मोलिक्यूल के बीच में कम होंगे, विस्कोसिटी कम होगा, राइट? क्लियर? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर molecules possess more energy, liquid molecule can move more freely, thus viscosity of liquid decreases with increase in temperature. गैस के केस में विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी कहां से मिलती है? इन केस ऑफ गैसेज विस्कोसिटी इज कॉज्ड बाय मोलिकुलर कॉलिजन्स, जिसके कारण जो है ना फ्लूइड मूवमेंट में ऑब्स्टेकल आती है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में ऑब्स्टेकल आती है ड्यू टू रैंडम मोलिकुलर कॉलिजन्स। टेम्परेचर बढ़ने पर ये कोलिजन और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, डिफिकल्टी और होगी मूवमेंट में। सो विस्कोसिटी क्या है? रेसिस्टेंस टू मूवमेंट व्हेन फ्लूइड्स आर मूविंग विथ रिलेटिवली डिफरेंट वेलोसिटीज। यानी दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों के फ्लूइड के वेलोसिटी का डिफरेंस है, राइट? तो एक फ्लूइड दूसरे को जो है ना अपोज करेगा, यानी फास्ट मूविंग चाहेगा कि जो है ना उसके स्लो मूविंग फ्लूइड लेयर को ले चलूँ अपने साथ, और स्लो वाला चाहेगा उसको ना जाऊँ उसके साथ। तो इस प्रकार जो है ना स्ट्रेस डेवलप हुआ, शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। फॉर लिक्विड विस्कोसिटी इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एक्सेप्ट एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर थोड़ा प्रेशर चेंज करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी लिक्विड के केस में, बट फॉर गैसेस डायनामिक विस्कोसिटी जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, राइट? म्यू की वैल्यू यानी कि इंडिपेंडेंट है प्रेशर से,
एट लो टू मॉडरेट प्रेशर। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेंसिटी जो है ना क्या होती है, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ेगी तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। डेंसिटी अप्रेसिएबल अमाउंट में चेंज होती है गैस में, तो डेंसिटी जो है ना डिनोमिनेटर में है म्यू के इन द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। Fluids which obeys Newton's law of viscosity, this is Newton's law of viscosity, are called Newtonian fluid. And those fluids which do not obey this rule are called non-Newtonian fluid. बात समझ में आ गया? अगर इसको जो है ना इस रूल को फॉलो कर रहा है फ्लूइड तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा, बिकॉज दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर इसको नहीं फॉलो कर रहा है तो वो जो है ना नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। चलिए हम जनरल रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में लिखते हैं, जो सारे फ्लूइड के लिए वैलिड हो। शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई रेज़ टू द पावर n प्लस बी। एक पावर कम करो, ड्यू डी वाई को एक बाहर निकालो, राइट। अब ये टर्म आया, इसको कंबाइंड करके एक अनदर जो है ना टर्म म्यू प्राइम बोलो, दिस इज कॉल्ड अपरेंट विस्कोसिटी। तो हियर शियर स्ट्रेस इक्वल टू अपरेंट विस्कोसिटी ड्यू डी वाई प्लस अपरेंट विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में जो विस्कोसिटी फील होगा जब रिलेटिव मूवमेंट आएगी फ्लूइड लेयर्स के बीच में, तो एक्चुअल में जो है ना ये फील होगा हाई क्या म्यू जब रेस्ट में था तो विस्कोसिटी। लेकिन जब मूवमेंट आएगी तो जो आप फील करोगे, रियलाइज करोगे, अपरेंटली जो आप महसूस करोगे वो म्यू प्राइम है। तो इट इज कॉल्ड अपरेंट विस्कोसिटी। टाइप्स ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, दो टाइप के हो जाएंगे अपने पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो पहले हम लोग देख लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फर्स्ट डायलेटेंट फ्लूइड, तो जो जनरल शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में रिलेशनशिप था उसमें एन की वैल्यू इसके लिए 1 से बड़ा होती और बी की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो दिस इज जनरल रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। तो एन ग्रेटर देन 1 है, बी 0 है, तो बी 0 पुट कर तो ये बन गया। ड्यू डी वाई एक निकाल लो इसमें से, तो ये आ गए आपके म्यू प्राइम। ये डियर फ्रेंड्स टाउ एंड ड्यू डी वाई के बीच में वेरिएशन देखेंगे फॉर dilatant fluid which is time independent non Newtonian fluid, right? Here mu prime is equal to mu u upon dy raised to the power n minus 1, because n greater than 1, so here mu prime is also varying with du upon dy, right? Du upon dy, this is the slope of कर्व ऑन टाउ एंड ड्यू डी वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू एम एक्स लिखते हो, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वाई एक्स के बीच में जो है ना ये फंक्शनल रिलेशनशिप है जिसमें ये स्लोप कहलाता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो स्लोप कांस्टेंट होती है, उसी के जैसा ये है शियर स्ट्रेस, वाई के जैसा हो गया, ड्यू डी वाई एक्स के जैसा हो गया, तो शियर स्ट्रेस स्लोप इनटू दिस। हियर स्लोप इज वायरिंग विथ ड्यू डी वाई, यानी कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है बहुत फास्ट मूव कर दिए जो है ना फास्ट मूविंग लेयर को एज कम्पेयर टू स्लो मूविंग लेयर, तो ड्यू डी वाई ज़्यादा हो जाएगा। यानी पहले जो है ना जो मूवमेंट थी दोनों लेयर के बीच में ये बहुत फास्ट मूविंग था, ये स्लो मूविंग था, अब इसे और फास्ट कर दिया गया इसे इसके कंपेरिजन। तो क्या हो गया, सेम डिस्टेंस था दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर जो है ना वेलोसिटी का डिफरेंस ज़्यादा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ गई, तो बढ़ गई तो जो है ना यहाँ पर जो विस्कोसिटी महसूस हो रही थी उससे डिफरेंट विस्कोसिटी यहाँ पर फील होगी, बढ़ेगी घटेगी, देखते हैं डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। बिकॉज n ग्रेटर देन 1 ड्यू डी वाई जब इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू जो है ना इंक्रीज करेगी, राइट। तो बी 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा, बट जो है ना अपवर्ड कनकेविटी होगी। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है और इसका स्लोप इस एंगल का tan है, राइट, tan थीटा ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ दिस एंगल gives the value of slope at this point। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है और ये जो ना ज़्यादा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से,
तो tan ऑफ हायर एंगल स्लोप कहलाती है और हायर हो गई। इस पॉइंट पर देखोगे तो टेंजेंट ये है, दिस इज द टेंजेंट एंड इट इज मेकिंग फॉर मोर एंगल फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल, so tan of this higher angle which is higher slope is continuously increases as we increase du upon dy, it is passing through origin. Guys, this is curve for dilatant fluid between tau and velocity gradient. Fluid for which apparent viscosity increases with du dy are called dilatant fluid. Dilatant fluid are also called shear thickening fluid, क्योंकि हम ये वेलोसिटी ग्रेडियंट मोर एंड मोर shear फोर्स और shear स्ट्रेस लगाकर डेवलप कर रहे हैं ना, इस पर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा आ जाएगी, यानी ये बहुत फास्ट मूव करेगा और ये कंपेरेटिवली जो है ना लो है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगी। यानी जितना चाहेंगे जितना फास्ट, जैसे फ्लूइड प्लेट रख दिए, प्लेट को तेज़ी में मूव करेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, और जो अपरेंट विस्कोसिटी महसूस होगा, जो आप प्लेट को मूव कर रहे हैं तो लोअर लेयर चाहेगा ये मूवमेंट ना हो, उतना ही आपको जो है ना हार्ड फील होगा, डिफिकल्ट फील होगा मूव करने में। यानी कि शियर लगाने से ऐसा लग रहा है कि इसकी थिकनेस बढ़ गई है, हाँ ज़्यादा विस्कस हो गई है ये, so it is called shear thickening fluid. Higher velocity gradient due to higher shear force establish करने से ये इस तरह का फ्लूइड आपको जो है ना थिक महसूस होगा, गाढ़ा महसूस होगा, विस्कस नेचर उसकी और जो है ना रियलाइज होगा, राइट। Pseudoplastic fluid. For pseudoplastic fluid, the value of n less than 1 and b is equal to 0, राइट। तो n की वैल्यू जो है ना यही है ना, b अभी भी 0 है, n की वैल्यू जो है ना यहाँ पर क्या है 1 से छोटा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, म्यू अपॉन ड्यू डी वाई रेस टू दी पावर है ना 1 माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि n 1 से छोटा है, राइट। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ड्यू डी वाई, तब ड्यू डी वाई के बढ़ने से क्या हो जाएगी, म्यू प्राइम की वैल्यू डिक्रीज करेगी। म्यू प्राइम इज द स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन टाउ एंड ड्यू डी वाई, राइट। यानी कि यहाँ पर उल्टा होगा, स्यूडोप्लास्टिक में डायलेटेंट के कंपेरिजन बिहेवियर अलग होगा, राइट। लेकिन टाउ ड्यू डी वाई के साथ बढ़ेगा, अगर ड्यू डी वाई बढ़ता है तो टाउ बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का जो वे होगा इस नेचर का होगा। स्लोप देख लो, टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग हुआ, बढ़ेगा जरूर टाउ ड्यू डी वाई के साथ, लेकिन ऐसे बढ़ेगा डाउनवर्ड कनकेविटी, राइट। तो ये आपको जो है ना जितना ड्यू डी वाई बढ़ाएंगे बाय अप्लाइंग मोर एंड मोर शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स, राइट, मूवमेंट ऑफ लेयर बिकम्स इजी एंड इजी, यानी शियर के साथ जो है ना ज्यादा शियर लगाएंगे तो हल्का फील होगा, थिन फील होगा, सो दिस इज कॉल्ड शियर थिनिंग फ्लूइड, pseudoplastic, right। Fluids for which apparent viscosity decreases with du dy are called pseudoplastic fluid. Pseudoplastic fluids are also called shear thinning fluid. Example, lipstick, paint, blood, paper pulp, syrup, milk, right। तो लिपस्टिक का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मार्केट से खरीद के लेके आइए और थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर एक लेयर लगाइए, स्लो मूव करेंगे तो हार्ड फील होगा, यानी कि आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा इस स्टेशनरी वाले, इसको फिक्स रखिए और इसमें लिपस्टिक का मोटा लेयर लगा के मूव कराइए, तो स्लो मूव करेंगे तो इजीली मूव होगा, डिफिकल्ट होगा मूवमेंट, और फास्ट मूव करेंगे तो इजी हो जाएगा मूवमेंट, रेसिस्टेंस कम आएगी, बिकॉज शियर से थिन फील हो जाता है, वो थिनिंग की फीलिंग आती है, वाह जबरदस्त। बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक N1 एंड B की वैल्यू नॉन जीरो, तो ये इस तरह का बनेगा, राइट। ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट, इंटरसेप्ट ऑन टाउ एक्सिस। जब ड्यू डी वाई जीरो होगी तो टाउ की वैल्यू बी होगी, ड्यू डी वाई जीरो टाउ की वैल्यू बी, राइट। अब यहां से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरह के फ्लूइड के पास इनिशियल जो है ना रिजर्व शियर स्ट्रेंथ है, एग्जांपल टूथपेस्ट, राइट। टूथपेस्ट उसके ट्यूब में रखे हुए हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तो आप इसको दबाओगे तो आप मूवमेंट ला दिए ना सेंट्रल वाले लेयर में, और जो लेयर ट्यूब के वॉल में चिपके हुए हैं, ट्यूब तो स्टेशनरी है, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन वन लेयर ऑफ टूथपेस्ट
which is in contact with tube wall is not moving due to this पुशिंग एक्शन, हम चाहते हैं बाहर निकालने के लिए। तो वो सेंट्रल वाले लेयर को जो है ना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि बाहर ना निकलो। तो हमने थोड़ा सा लगाया, यानी कि उस पर शियर स्ट्रेस डेवलप होगी अंदर वाले में, लेयर के बीच में। फिर भी जो है ना मूवमेंट नहीं हो रही है, जबकि चाहे शियर स्ट्रेस कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, मूवमेंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही। और दबाया और दबाया, तो पहले तो आपको इतना जो है ना शियर स्ट्रेस अप्लाई डेवलप करनी पड़ेगी इसको दबाकर, तब जाकर जो है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो रही है। तो आप देखिएगा टूथपेस्ट के साथ एग्जांपल है ये। उतनी पहले जो है ना उसकी रिजर्व शियर स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा लगाओगे तब मूवमेंट आएगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रल लेयर जो है ना ट्यूब के जो है ना ओपनिंग से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। यानी अब वही वाटर रख दो तुम, थोड़ा सा भी दाओगे बाहर निकल जाएगी। Bingham plastic fluids require a certain minimum shear stress, yield stress before they start flowing. यानी फ्लो करने से पहले इसमें लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, तब ये मूवमेंट आएगा। टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, थीक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, रियोपेक्टिक फ्लूइड। थीक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स are liquid or gases whose viscosity decreases upon applying stress over a known time period. यानी कि थिक्सोट्रॉपिक का विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक आप उस पर शियर फोर्स लगा रहे हो, एक लेयर को मूव कर रहे हो, तो बाद में जो है ना आपको फील होगा उसी पर जो है ना बड़ा इजीली मूव कर रहा है, उसी शियर फोर्स पे और शियर स्ट्रेस पर अब जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ गई और फास्ट मूविंग आपको देखेगा। थोड़ी देर बाद इनिशियली हमने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शियर फोर्स शियर स्ट्रेस उसमें इंड्यूस कराया, अप्लाई किया शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस इंड्यूस हुई, जिसके कारण वेलोसिटी ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ, राइट। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना उसकी विस्कोसिटी जो है ना कम हो जाएगी, उतना ही अभी लोड रखे हैं और अब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगी। तो टाइम के साथ जो है ना यहाँ पर विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, राइट। तो ये जो है ना इट कैन बी डिफाइंड एज टाइम डिपेंडेंट स्यूडोप्लास्टिक बिहेवियर। तो टाइम डिपेंडेंट उसका कर्व जो है ना स्यूडोप्लास्टिक की तरह होगा, राइट, स्यूडोप्लास्टिक की तरह, डाउनवर्ड कन्केविटी। रियोपैक्टिक फ्लूइड, बिहेवियर ऑफ रियोपैक्टिक फ्लूइड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टाइम डिपेंडेंट डायलेटेंट बिहेवियर। डायलेटेंट की तरह कर्व इसके होंगे, राइट। Therefore, the longer the fluid goes under shear stress, higher the viscosity of the fluid becomes. अब यहाँ पर विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है। एग्जाम्पल जिप्सम, पेस्ट एंड प्रिंटर इंक, राइट। तो ये जो है ना आपका टाउ एंड डी वाई के बीच में डायग्राम है वेरियस फ्लूइड्स के लिए। आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे फ्रेंड्स, राइट। आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, शियर स्ट्रेस जीरो इंटू क्यू, ऑल द टाइम जो है ना शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, चाहे जो भी वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, जितना भी वेलोसिटी ग्रेडियंट आप एस्टेब्लिश कर लीजिए, शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे ही नहीं। विस्कोसिटी ही नहीं है, विस्कोसिटी से ही शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही थी, डेवलप होगा ही नहीं, राइट। तो ड्यू डी वाई के साथ जो है ना शियर स्ट्रेस जीरो है, बदल नहीं रहा है आइडियल फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया, वहाँ कर दिया था। दिस इज अ स्यूडोप्लास्टिक, बी जीरो एन लेस देन 1, इस और ये हमारा जो है ना न्यूटोनियन फ्लूइड है। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू ड्यू डी वाई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड, राइट। ये आपका बिंगम प्लास्टिक हो गया, एन जो है ना 1 है, बी की वैल्यू नॉन जीरो है, राइट। दिस इज बी नॉन जीरो, एन की वैल्यू लेस देन 1, इसकी बिहेवियर सीडोप्लास्टिक की तरह है, एक्सोट्रोपिक। रियोपैक्टिक की बिहेवियर, राइट, आपको जो है ना डायलेटेंट की तरह है, नहीं जीरो होता है इसका, एन ग्रेटर देन 1, राइट। ये याद कर लीजिएगा। एक बियर कंपनी है, हमें तो पूरा पता नहीं है, टूबरो बोलते हैं, टूबर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जो भी बोलते हो, टूबरो, टूबर्ग, टूबरो, तो यहाँ से जो ना आप ले लीजिएगा टूब्रो, पी ना दिल, दिल से, राइट।
एक्सोट्रॉपिक, बिंगम प्लास्टिक, रियोपेक्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन, डायलेटेंट, आइडियल। तो ब्रो पीना दिल से, जबकि आपको पीना नहीं है, मैं पीना नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई पीता है उसका एडवांटेज आपको कैसे लेना है नहीं पीते हुए, उसकी वजह से आप उस बियर का नाम याद कर लीजिए कि हाँ ये जो ना फ्रेंड हमारा, फ्रेंड तो नहीं रखना वैसे लोगों को, ये आदमी जो है सुबह पीता है तो उसका एडवांटेज मैं इधर ले लूँ, उसकी मदद से मैं इसको याद कर लूँ। ऑर्डर प्रॉब्लम है ये। क्लासीफाई द फ्लूइड्स फॉर विच ड्यू dy एंड टाउ आर गिवन। ये टेबल दिए हुए हैं, ड्यू dy एंड टाउ के बीच में रिलेशनशिप है, 4 डिफरेंट टेबल्स है। अब ये पता करना है ये सब किसका किसका है, ये कौन से फ्लूइड का है ये, राइट। आइए इस तरह से हम ये जनरल हमारा जो है ना टाउ एंड ड्यू dy के बीच में रिलेशनशिप है, ऐसे अरेंज कर लिया। स्लोप ऑफ टाउ एंड ड्यू dy कर्व, जैसे ये हमारा y है, ये x है, तो dy dx हमारा स्लोप होता है ना, इसी प्रकार चेंज इन टाउ अपॉन चेंज इन x, x के जगह पर ड्यू dy है, यहाँ पर हमारा ड्यू dy है और यहाँ टाउ है, तो क्या हो जाएगा डी टाउ डी ड्यू, दिस इज द स्लोप। अब यहाँ से जो है ना देखोगे स्लोप ये वाला पार्ट हमारा है, और ये कितना है म्यू ड्यू dy रेज़ टू पावर n माइनस, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है तो भी जो ना शियर स्ट्रेस है, रिजर्व उसके पास है, ये पक्का जो ना हमारा क्या है बिंगम प्लास्टिक है, ऐसे ही दिख जा रहा है। बिंगम प्लास्टिक में जो है ना इनिशियल उसके पास जो है ना रिजर्व शियर स्ट्रेंथ होते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन होती है टाउ एंड ड्यू dy का कर्व, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। 15 से 20 हो गया जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 से 1 किया गया था, चेंज वेलोसिटी ग्रेडियंट का कितना हुआ 1 का, और यहाँ 5 का चेंज हुआ, 5/1 स्लोप हो गई। 20 से 30 हुआ जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 से 3 हुआ था, चेंज 2 का हुआ और यहाँ पर 10 का हुआ, 10/2 5। 30 से 40 हुआ जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 3 से 5 हुआ था, चेंज जो है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट का 2 और यहाँ पर चेंज जो है ना शियर स्ट्रेस का 10/2 5, राइट। एंड ड्यू dy 0, टाउ हमारा जो है ना 15 है, तो ये जो है ना यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन टाउ एक्सिस एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है, दिस इज बिंगम प्लास्टिक। तो जो टेबल 1 है, टेबल ए, वो किस तरह के फ्लूइड का है, बिंगम प्लास्टिक का। टेबल बी को देखते हैं, सेम वे 2 - 0 0.5 - 0 4 4 - 2 1.1 - 0.5 3.3। तो यहाँ पर जो है ना स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है ना, स्लोप डिक्रीजिंग है। ड्यू dy 0 टाउ 0 ओरिजिन से पास करेगा एंड डिक्रीजिंग स्लोप यही है स्यूडोप्लास्टिक। टेबल सी, यहाँ पर आप देखोगे स्लोप कांस्टेंट है और ड्यू dy 0 तो टाउ 0, दिस इज न्यूटोनियन फ्लूइड। डी को देखते हैं, स्लोप कांस्टेंट है बट ड्यू dy 0 और टाउ हमारा नॉन जीरो है, ये आपका क्या है बिंगम प्लास्टिक, राइट। तो गाइस दिस इज एंड ऑफ वेरी बिगिनिंग टॉपिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, राइट। यही सेशन को हम क्लोज करते हैं।